हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू विच इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर, इसके डिफरेंट टाइप्स एंड इसके डिफरेंट फंक्शंस को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपल एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। चाहे ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है या इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन में किडनी आएगी, चाहे लंग्स आएगा, चाहे ब्लड वेसल्स आएंगे, चाहे ग्लैंड्स आते हैं, इन सारे ऑर्गन्स को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इन ऑर्गन्स की जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल लाइनिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से जो हमारी स्किन होती है, दैट इज आल्सो एन एपिथेलियल टिश्यू। एज यू नो दैट दिस स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड दिस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड टू द इंटरनल साइड ऑफ आवर बॉडी। वी कैन से दैट एपिथेलियल टिश्यू acts as a barrier, or skin forms a barrier between the external and internal side of our body, so that the microorganisms cannot enter inside our body. Now we will discuss what is epithelial tissue. As the name indicates, epi means upon and thelial means cell layer. It means that this tissue, this type of tissue grows on another type of tissue, another type of cells. That is the reason why it is called as the epithelial tissue. Suppose this is the connective tissue and this is the epithelial tissue. When epithelial tissue grows, it grows on another tissue, it grows on connective tissue. And if this is a muscular tissue, this is the epithelial tissue. Epithelial tissue grows on muscular tissue. So we say is that epithelial tissue always grows on another tissue. That is the reason why it is called as the epithelial tissue. Epi means upon, thelial means cell layer. A tissue which grows on another tissue is called as epithelial tissue. It covers the external body एंड लाइन इज द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी होती है, एक्सटर्नल साइड होता है, इसे ये कवर करता है, इसे ये प्रोटेक्ट करता है, इसे ये शील्ड करता है। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लंग्स होते हैं, लाइक किडनीज होते हैं, लाइक ग्लैंड्स होते हैं, लाइक ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पे भी क्या करता है? ये कवर करता है। और cells are closely packed in case of epithelial tissue. आप देखिएगा, this is the cell, this is another cell, this is another cell, and these cells are closely packed to each other, and there is no intercellular space in between the cells. This is one cell, this is next cell, and between the cells there is no intercellular space, as they are tightly packed, as they are closely packed with each other. Number next point, this is the avascular tissue with nerve supply. ये वो टिश्यू होता है जो avascular होता है। इसमें आपको ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगी, इसमें आपको ब्लड वेसल्स एब्सेंट पाएंगे आप इस वाले टिश्यू में, लेकिन इसमें आप नर्व सप्लाई पाओगे। इसमें नर्व जो होती है, नर्व सप्लाई, presence of neurons, that is present in case of epithelial tissue. Number next point, cells lie on basement membrane. ये जो cells है, this is the one layer of epithelial cell, next layer and next layer. This lies on the basement membrane. Basement membrane is the non-living membrane which provides support, which provides attachment, which acts as a substrate for this epithelial tissue. And this is the apical side of this epithelial tissue. Apical side may be smooth, it may contain small projections like cilia, it may contain microvilli that increases the surface area for absorption as well as for secretion. ठीक है ना बेटा? अब हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू? इसकी फंक्शन है दैट इज द प्रोटेक्शन। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी। इट एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप हमारी स्किन को, अभी मैंने बताया, स्किन एक्ट्स एज अ बैरियर
between the external and with the internal side of our body. So this acts as the first line of defense. ये पैथोजेंस को इंटर नहीं होने देता हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में. नंबर नेक्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन. जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है. हम जब भी फूड खाते हैं, ये फूड कहां पे ले जाना होता है? इन द फॉर्म, इन सॉल्युबल फॉर्म, ब्लड में ले जाना होता है. तो ये काम भी कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा चाहे लार्ज इंटेस्टाइन होगा, तो वहां पे आप पाओगे एपिथेलियल टिश्यू, या स्टोमक में भी ये प्रेजेंट होगा. सिक्रीशन, एंजाइम्स, म्यूकस, सलाइवा, स्वेट, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है. कौन? एपिथेलियल टिश्यू. ये प्रेजेंट होगा कहां पे? स्टोमक में भी ये प्रेजेंट होगा, डिफरेंट ग्लैंड्स में भी, और ये प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल्स में, और ये प्रेजेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. आपको पता है एंजाइम सिक्रीट करता है डिफरेंट ग्लैंड्स, तो वहां पे प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू. म्यूकस की फॉर्मेशन कहां पे होती है? म्यूकस फॉर्मेशन होती है आपके स्टोमक में भी, और डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल में भी ये प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, म्यूकस. इसी तरीके से सलाइवा, जो सैलिवरी ग्लैंड होगा तो वो इसको सिक्रीट करेगा, तो वहां पे भी प्रेजेंट होगा एपिथेलियल टिश्यू. इसी तरीके से स्किन जो होती है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्वेट होता है, दैट आल्सो पॉजेस एपिथेलियल टिश्यू. Number next is sensation. It gives sensation. The sense organs present in our body, like eyes, like nose, like tongue, that also contains epithelial tissue, sensory organs. ठीक है ना. अब हम next lecture में discuss करेंगे what are the different types of this epithelial tissue on the basis of cell layer. On the basis of cell layer, if this is the single cell layer, then we call it as the simple epithelial tissue. If there are multiple cell layers, and we call this as the compound or stratified epithelial tissue. So we say is that epithelial tissue is of two types on the basis of cell layers. If there is a single cell layer present, we call this as the simple epithelial tissue, and if there are multiple cell layers, we call this as the stratified or compound epithelial tissue. Then इसके भी टाइप्स निकलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप you have understand the topic. Allah Hafiz.